So just let me do a brief introduction. So Kamran and I have known each other for way too long, I guess. We've known each other since 1993. We've been friends since then, and now we are family friends. We've stayed in touch all these years. And Kamran has been a regular visitor to Emumba for many, many years now. He basically has worked, I think, for almost 15 years in the US. A lot of that time was spent with IBM. And IBM, as you would understand, is a company that is known for best practices, processes. It used to be a company that used to publish a lot of material in terms of the best practices in the industry, in terms of how engineering is done, how design is done. Of course, I think the past 5, 7, 8 years, a lot of things have changed. For the past many years, he has moved to Saudi Arabia. और सऊदीया में एक कंपनी है इल्म के नाम से, and think of that company as Nadra and more. They do all the stuff that Nadra does, but they do all the services that the government offers to its citizens. और सऊदीया में अगर आप लोग मिडिल ईस्ट के हैं तो you would realize कि there are tons of services जो कि अब आपको digital form में मिलती हैं. In fact, everything that you can imagine government offering to its citizens, it is served through applications. Which means ये सारी वो applications हैं जिनका consumer facing applications जिसमें high volume है, high load है. Of course, security, sensitivity, all of those things matter a lot. So जो organization उसके पीछे engineering कर रही है, it has to be a cutting edge organization, both in terms of the quality of engineering and putting those things into production. Kamran का charter पिछले बहुत सारे सालों में, and I let Kamran explain that as well, has been essentially digital transformation within that organization. Okay, how do you modernize your engineering practices? जो कि हमारे लिए भी एक बड़ा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है कि हम अपनी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को कैसे अचीव करें और किस मेथड के थ्रू अचीव करें. आई मीन देयर आर टन्स ऑफ वेज टू अचीव इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और दुनिया में बेशुमार मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ कंपनी वी एस्पायर टू बी. एंड आई थिंक कामरान हैज़ टेकन इल्म ऑन अ जर्नी जिसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सारा जो उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं. उसमें कल्चरल चेंज भी चाहिए, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी चाहिए. आज का जो टॉपिक है, पिछला सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था कामरान का? सम पीपल दैट वर देयर, राइट? So I think this is kind of a new topic जो अभी कामरान आते हुए मुझे बता रहा था that he's been researching on, and this is the next round of innovation that he wants to bring at ILM. So he's done a lot of research, he's done a lot of analysis, and he's put this presentation together. और हमारे लिए useful relevant इसलिए because I think बहुत सारी चीज़ें इसमें से हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे. So I think with that brief introduction, over to you, Kamran. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum, guys. Mic ठीक है? Okay. I think there might be people on online. I'm not sure. Anyway, so thank you for the awesome introduction. I feel very good. Must be doing awesome job, man. So we had a previous session where we talked about technological revolutions and how can an organization or an individual or a group of people can need to what do they need to do to be successful in this digital age we are in. We focused on learning culture, we focused on speed of innovation, systems approach, value stream management, visualization, those kind of topics. So those were all about how to create high performing organization. Now when you have a small organization, it's easy to do things. हमारा एक दोस्त है, he started EV bikes manufacturing. ठीक है, जोजी की बात हो रही. तो Hassan used to say, by the way, he used to work for Microsoft as a quality assurance expert. Anyways, he left that and he's now focusing on manufacturing of electric vehicle bikes, motorcycle. So he got a large facility, बड़ा सा गोदाम होगा, इस फ्लोर से छोटा होगा लाजमन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी. ठीक है. Now everybody is now at shouting distance, so there is very easy to coordinate between each other how to get things done. But now imagine he grows over time and now he has a gigafactory. May Allah give him success.
ठीक है. So Tesla has gigafactories, right? Or if you have a large facility like you have 2 floors, right? And you have a lot of people sitting away from each other. And I worked in IBM where my team was spread across 5 regions around the world: Silicon Valley, Toronto, Hursley, China, India, and Taiwan. So, so there is a lot of coordination to be done. Okay? And even within your organization, you will see there are multiple departments, and whenever you have to do handovers, there is a lot of coordination required. And sometimes some key people are just there to do coordination. Again, normally we think of project managers or the lead type people as the guy who's going to glue the team together, help with team coordination and communication, collaboration, right? So although everybody in the team is responsible for collaboration. I'm a developer, so I'm responsible for writing code and making sure I have awesome code written, high quality. There's a guy who's responsible for user experience, or there is a guy who's focused on quality assurance. So that's their job responsibility. But there is a default or unwritten responsibility that everybody has: teamwork, right? Collaboration, because we all work in teams. IT business is not a one-man show. ठीक है? If you are a doctor, आप डेंटिस्ट हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, सामने एक स्टाफ बैठा होगा, वो अपॉइंटमेंट बनाएगा, बंदा भेजेगा, कोई 2 नर्सें होंगी, वो आपकी हेल्प कर रही होंगी, ठीक है? बाकी you are a one-man show, ठीक है? But in IT, it doesn't work like that. There are a lot of people involved. So, for example, in our company, Elm, we are 3,000 people and growing really fast. And we are a full stack company. We can't go to public cloud because of privacy and regulation reasons. So we are not only doing software development, but we are also running data centers, IT operations, cyber security, whatnot, help desk. Calls bhi aati hum uthate hain. So there are too many roles involved: product manager, project manager, architect, developer, tester, functional tester, non-functional tester, DCO, वो बंदा जो racking कर रहा है, server लगा रहा है, cabling कर रहा है, infrastructure, storage, database guy, application guy, monitoring का बंदा, NOC, SOC, help desk, business operations. ये तो सिर्फ technical लोग बताएं. जो business side के लोग हैं वो तो अलग से, sales, marketing, ठीक है? So the point is legal, procurement, hiring, right? So a large organization. Now everybody in that organization, so connecting to my point in the previous presentation, everybody in that organization exists to serve something. Okay? And one view to look at it is every organization has value streams. Those value streams can be your products, can be your service value streams, your revenue streams. Right? They're equal to that. We create those value streams are creating value that the customer is asking for, and when we deliver the value, the customer pays us. Everybody in the organization exists to serve those value streams. Now there are people who are directly involved with that, who are dedicated and assigned to those value streams, product team, solution team, ठीक है? But there are people who are indirectly involved who are supporting them. ठीक है? जो network का बंदा है ना, या जो cyber security में जो firewalls को देख रहा है, that's a shared service, but he's serving all of those value streams. So that firewall guy, that cyber security or infrastructure guy needs to know that my service is serving them. And he has to have that very clearly. On top of that, if you go to HR में जो hiring का बंदा है, he's hiring for those value streams. So he needs to know that my job will affect the value stream as well. Procurement का बंदा है, ठीक है, finance में या किसी और team में, तो वो he's procuring hardware, software or services for the value stream. And he needs to know that very, consciously कि यार I'm there. Otherwise क्या होगा? हाँ मेरी तो job है, procurement करता हूँ. What does it matter? थोड़ा सा delay होगा, ये होगा, quality का फर्क आ गया, cost ये वो. No, in order for you to have high, what you call streamlined flow of value. ठीक है, नई टर्मिनोलॉजी है ना, ठीक है, द फ्लो ऑफ वैल्यू, जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से निकल रही है, स्मूथ तरीके से, फ्लो का वॉल्यूम भी ज़्यादा है. वो जो हमने फ्लो फ्रेमवर्क की डिस्कशन की थी, उसमें एक नई टर्मिनोलॉजी थी, फ्लो.
Yani instead of saying development velocity, we now talk about flow velocity, right? To the flow of the whole value, how is that going? Because that what matters to the customer. Development ने जल्दी कर दिया, QA वाले पीछे बैठे हैं, तो that doesn't help, right? So the purpose of the whole organization is in order for having a high performing organization to increase the flow of the value, ठीक है? तो अगर हम flow metrics को देखें, flow velocity, flow load, flow volume, कितनी ज़्यादा चीज़ें हम एक वक्त में निकाल सकते हैं, यानी do more with less number of people, ठीक है? उसकी quality क्या है, ठीक है? How much revenue are we able to realize, how quickly, you know, in a reliable fashion. Anyway, so next topic is cost of coordination. Now we have to coordinate with among all of these people. Because the point is, the procurement guy, if he's not doing a good job, how is, you know, a project manager say, hey guys, you know, it's not our fault. There is an impact of poor procurement management on our value streams, on our delivery. तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? आप जाके शिकायत ही लगाते रहेंगे, यार वो बंदा स्लो था, वो भी कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने फॉर्म नहीं भरा था, वो नहीं हुआ, पैसे टाइम पे नहीं आया जी, वो वेंडर ने हम डिले कर दिया, एक दूसरे के ऊपर जाता रहेगा. How can we have this realization and coordination done in a very streamlined fashion? So we'll talk about certain topics over here. We're not going to touch on everything. Common sense वाली बातें, ठीक है? एक और मैं पॉइंट ज़रूर पेश करूँगा, वो ये कि we are in the IT industry, we have to do a lot of figuring out. One organization is very different from the next organization. Every organization has its own culture, their own expertise, people, ways of doing things. So how to figure out कि यार best practices. तो अब वो term use करते हैं, यानी what is the best fit for your organization? You know, the best fitting practice. Think of it like that. So we need to be ready to take an agile approach to all of this. That is to say that we should be able to experiment with different things, because not everything will work. If it works for us, may not work for you. ठीक है? सऊदी का context जो है ना, सऊदी अरेबिया का, वो different है. यहाँ का context काफ़ी different है. यहाँ पे you have a lot of other plus points. Over there, we have other plus points. We have other negative weaknesses. Here, you might have different type of weaknesses. ठीक है? So we have to try the organization. का मैं ये कहूँगा कि if you are able to, you have a culture where you have a safe culture where you can experiment things and quickly go to other things. You know, अच्छा ये it didn't work. Okay, we learn from it. Feedback. Agile में है ना कि you do things in iterations and you collect feedback, and that feedback loop helps you improve the next iteration. So you keep on doing that until you find, you know, something good. And by the way, things don't stay static, right? So maybe, like for example, you form a team of people, so they will start working with each other. शुरू में वो एक दूसरे से अजनबी होंगे. It will take you time to get to know each other and get into the flow of things. ठीक है? After maybe 3, 4, 5 months, the flow will happen. There is a whole team psychology of forming and storming, और पता नहीं वो 4 stages होती हैं उसकी, ठीक है? तो once that happens, you know, now you have the flow. So that's why they say, hey, let's have long-running teams. ठीक है? That's the principle, you know, of best practice, you know, so you can apply. तो ये टीमों को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, लोगों को इधर नहीं करना, आपस में ताल्लुक बन गया, ठीक है? So the point is कि वो जो शुरू के कुछ महीने उनकी dynamics different है, ठीक है? और जो उसके बाद होगा वो different होएगा. इसी तरह if you have to work closely, if you have to do collaboration with another team because you don't have that expertise and they have to come and help you, right? So what is your engagement model with that other team? So if you are collaborating with them, you have to work very closely with them for a short period of time, and then you will separate out. ठीक है? तो ये यानी my point is you need to have an open mind, you and the management leadership, to be able to create an environment where people are, you know, to begin with, open-minded, collaborative, teamwork. ठीक है? That's the reason good attitude, collaborative attitude, teamwork का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? ये जो introvert type behavior हो या मैं अकेला काम, by the way, I've heard senior people saying, hey, I'm doing my job. Why do I have to have teamwork with my?
my team collaborated. यानी वो बंदे को समझ ही नहीं आ रही थी. 2 senior guys. And how do I know this? Because that particular team had a lot of issues with teamwork. And they were like, not more than one person in that team who had that attitude. They actually questioned us. Yeah, why do I have to do teamwork? I was like, crap, man, like, how do I explain this to him? So, because we have to coordinate, that's the main point, right? So there are a lot of hidden things that are eating away our coordination. And they are obvious, right? They are everywhere. Right? And some symptoms of bad coordination shows up in most of the organization. So we see capacity and estimation fails. You know, हम करेंगे, हम 4 महीने में डिलीवर कर देंगे, 2 महीने में डिलीवर करेंगे, और अक्सर हम आखिर में ना लगे हुए होते हैं यार डेडलाइन मिस ना हो जाए कहीं. क्योंकि estimation, यानी I'll tell you this, when I used to work in IBM, and that was long time ago. I left IBM in 2013, और उसके कुछ शुरू के सालों में हम waterfall करते थे, और हमारी रिलीजेस 9 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल की होती थी. DB2 है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी रिलीज 1.5 से 2 साल होती थी. अब नाउ इमेजिन दिस IBM में, बेस्ट प्रैक्टिस में, टॉक अबाउट बस 2 साल पहले हम कहते थे वाटरफॉल का जो वो QA का साइकिल चलेगा ना, टेस्ट साइकिल, उसमें हमारा डिफेक्ट डिस्कवरी रेट क्या होगा बाय सिवियरिटी. हम इतने सेव 1 निकलेंगे, इतने सेव 2, यानी like we have a magic ball because these are the features we are gonna implement. हमें डिटेल भी नहीं पता ना, डिज़ाइन हुआ ना कुछ, ये प्लानिंग फेज में हो रहा है सारा काम. और डिफेक्ट टेक डाउन रेट क्या होगा, तो वो हम चार्ट्स बनाते थे. We were pulling it out all of thin air, man. It's all bullshit in my opinion. ठीक है, तो and most of the time, you know, we would miss that. ठीक है, बॉल पार्क कोई 70% एक्यूरेट हो गया तो ठीक है, बॉल लक्ष्य कर रहा है, then we buffer it. So anyways, estimation go wrong even now in agile team. So that's why in agile, you know, we pick up depending on the, you know, this close knit team of maybe 4 to 8 to 9 people. And they know each other really well, and they have to now estimate just for the next sprint or 2, right? And then so it's not, they're not using the magic ball too much, right? I mean, they can do that to a certain extent, and they pick up the highest priority items from the backlog, and that's what they work on. Okay? So things are pretty well known, they're less ambiguous, but there is still some level of uncertainty over there. So that's why that's one of the reasons to move towards agile. Team struggles to make progress. We see that a lot, especially as the organizations grow. Especially when you have a lot of coordination to be done. यानी आप imagine करो कि हमारे जो मैंने आपको पूरी teams, operations, cyber security सारी बोली है, how do you coordinate among those teams? Too many of them. Escalations are normal. It happens, you know, and I'll give examples of it. You will see it. Because everybody is so busy, you know, I have my work to do, and there is a queue of people standing, waiting on me to do something. So please do my thing first, So this is what is happening over there. People are waiting, they are getting frustrated. Rework, a lot of wastage, you know, defects निकल रहे हैं, काम सही तरीके से नहीं हुआ पहली दफ़ा, that's called rework. You have to redo it, right? So that's wastage, pure wastage. Customers are waiting and they are unhappy. So these were typical issues. What we want to do is recognize these coordination risks that we will talk about, inshallah, organize and optimize, you know, so that we can have some fun doing work. And the most important goal is to achieve fast flow of value. Right? That's the most important thing. Okay, so we'll touch upon these around 6 topics today. If we have time, we can talk about other things. We'll do some whiteboarding as well. So let's jump right into it, okay? So I call it physics of work coordination. Why physics? Because there is this simple math as well. हम कहें यार 5 बंदे हैं, ये इतना काम कर सकते हैं, इनको काम दे दो, बस ये इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है? और वो नहीं होता. Because there are a lot of other dynamics involved. So those dynamics, we call it physics. Right? It's not just a simple math, 1 + 1.
So we need to recognize that. So one of the first thing is, as we overload people, how does that impact their work or their quality of service to other people? Right? So let's say there is somebody you want him to do something for you. Now, how much you will have to wait for him to get to your work? And remember, you are not the only person. There are other people as well coming to him. Let's say कोई बंदा है, कोई network engineer है, उसके पास ticket आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, वो और भी काम कर रहा है, ठीक है? So there is a very simple formula: wait time. How much is that guy busy divided by how much he's available. So if somebody is busy 50%, he's available 50%. So 50 divided by 50, you only have to wait 1 unit of time for him, either 1 hour, 1 day, depending on whatever is the dynamic over there. So if somebody is 60% busy, okay, simple math, 60 divided by 40, 60 he's busy, 40 he's available, idle, wait time is 1.5 units of time. ये हमने उसका ना प्यारा सा ग्राफ बना दिया. तो उसमें पॉइंट समझने की बात ये है कि as you go above 80%, ठीक है, the time shoots up, wait time, ठीक है, 80 divided by 24 units of time, 4 hours you will have to wait, or 4 days, I don't know, and depending on the unit you are taking. But it goes to 90, it's 90 divided by 10, 9 units. और 95 पे तो बिल्कुल ही बड़ा फ़र्क हो जाएगा, 100 पे तो बंदा अवेलेबल ही नहीं होगा. तो हमारी मुझे याद है जब हम मैनेजर थे जवानी में तो हमें हमारा एक जो हमारा बॉस होता था ना, डायरेक्टर या कोई GM टाइप बना, वो कहता मेक श्योर योर टीम इज़ देयर प्लेट्स आर फुल, यानी उनको ना फारिग ना बैठने, तो उनसे कहाँ सही तेल निकालूंगा, काम करवाओ उनसे. But that's a very bad idea, because if you make their plates full, आपको पता है IT का काम ना हवा की तरह है, ठीक है? मैं हवा को एक कमरे में बंद करूँ ना, तो हवा फैल के पूरे कमरे में फैल जाएगी. तो हमारा जो काम है ना, even if I give you 60% work, वो 40% ना कहीं और से निकल आएगा. It always come about because our estimations are bad as well. वो काम निकलते हैं इसमें, lot of dependencies. I explained this, मैंने शायद last time भी example दी थी. If you are constructing a house, आप architect के पास जाना, वो design कर देगा इसको. Now, if you build that house, get a contractor and build it in Pakistan, वो ईंटें लेगा, सरिया मरिया लगाएगा, RCC construction हो जाएगी. कोई भी contractor ले, 19-20 का फ़र्क होगा, घर उसी तरह ही बनेगा. अमेरिका चले जाओ, वो लकड़ी का घर बनेगा, वो उसी तरह ही बनना है उसने. So there is not a lot of room for creativity. But if you take a e-wallet, ये बैंकिंग एप्लीकेशन, अब मेरे पास MCB की भी है और UBL की भी है. अब they are providing banking service, mobile banking. But if you go back and look at their implementation, 100% different होएगी, ठीक है? Because there is huge room for creativity in IT systems, huge room for creativity. So whenever there is creative work, यानी the creativity can be translated into productivity. So Google में उन्होंने ये studies की थी कि यार if you have a creative guy like Mozart, उसने वो सिम्फनियाँ बना ली अपनी, वो और बंदा नहीं बना सकता, यानी creativity इतनी high थी उसकी. लेकिन अगर हमारे उसमें है तो वो उन्होंने कहा कि one creative guy can be as productive as 2, 3, 5, up to 20 people. ठीक है? Anyways, the point is, खैर तो हम digress कर गए. As you load up the people, वो जो है ना हमारा काम निकले, काम की कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो you need to make sure कि यार people are not, एक rule of thumb ये है कि we don't fill their plates more than 80%. Now, I have heard, by the way, from industry leaders, CTO type, जो engineering managers, directors in conferences and other places, 60%. मैंने 50% भी सुना हुआ एक बंदे से. मैं कहा यार बस कर यार, ये तो हमें बंदा फायर कर देगा, कहेगा यार तुम लोग बंदे से काम नहीं कराते. लेकिन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ देयर वर्क, यानी इट शुडंट बी मोर देन 80% इन माय ओपिनियन. इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदे फारिग बैठे होंगे, इसका ये मतलब है कि वो उनके पास अननोन्स को हैंडल करने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा. अच्छा, और स्पेशली अगर वो बंदा कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे कि देयर पीपल दे गो टू हिम, दे ओपन अप रिक्वेस्ट फॉर देम, देन इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम. अब हमारे पास अक्सर ही होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यार वो एक VM मांगा था, उसको देने में उन्होंने कई दिन लगा दिए. 5, 10, 15 मिनट का काम है. अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा, VM का बंदा VM बनाएगा, फलाना बंदा उसकी फायरवॉल सेट करेगा, कोई उसको DNS सेट करेगा, कोई उसकी स्टोरेज कर देगा, जो भी है. ये 3-4 बंदे हो गए. तो होता क्या है कि that was like a partial picture, right? Now, because normally
there is a sequence of tasks and multiple people that you have to go to. Imagine everybody is 90% busy, okay? And you have 3 steps. This jumps to 27 units of time. Okay? Oh, I'm busy. Up on top of that, you're not the only guy. There are multiple people, so there's a waiting queue. So the problem becomes, it explodes very, very quickly. Okay? So it's a very serious thing. You know, by the way, इसके पीछे बड़ी mathematics और वो चीज़ें involved हैं. If you want to look at that, queuing theory भी इसमें involved है, where they prove it कि यार don't go beyond 80%. ठीक है? तो अब वो पता नहीं ओएस को कितना अच्छा लग रहा होगा कि यार मेरे बंदे फारे बैठा करेंगे 20%. लेकिन the point is कि people do get busy. There is always work to do. There is no lack of work. ठीक है? Next topic. Any questions so far, by the way, about this? Yes. So ये practically हो रहा है कि 3000 बंदे की कंपनी 80% 60% वाली plate full? Yeah, like for example, in my team, I used to do that. By the way, I used to feel a little bit bad as well. Man, maybe मेरे बंदे जो है ना थोड़े से फारिग बैठे होंगे. लेकिन you know what? That allowed them to do many things that they could not do otherwise. और मेरी टीम में ये होता था. मैं आगे भी जाके चाहूँगा कि this is not just one thing. There are other things that get involved. You have to make sure that people are available to work on things that will pop up. ठीक है? Not only that, but also work on things that where you can, you have to improve things. अगर वही आप ना रेगुलर तरीके से करते रहोगे तो कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि यार मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं. वरना क्या होता है, आई हैव सीन इट, देयर आर पीपल लिटरली ऑफिस में 3-4 बंदे खड़े हुए, क्योंकि उस बंदे के पास जाना है. वो डेवऑप्स का बंदा था, उसने कोई पाइपलाइन बनानी थी, लेकिन वो ओवरलोडेड है. 4 बंदे खड़े इंतजार करें, यार पहले मेरा कर दे. वो को कहते हैं मैं तेरे रिश्तेदार हूँ, मुझे कर दो. इसलिए ना मैं वो इजिप्शियन था, उसने कहा यार मैं इजिप्शियन हूँ, मेरा ख्याल करो. तो ये होता है. And then, by the way, he was not able to do a good job for each one of them. तो वो वक्त के साथ फिर वो भी थोड़ा सा हो गया, यार चलो मारो गोली, यार नहीं होता तो ना दो. A business is suffering. Now, flow of value तो ख़त्म हो गई ना. In context of flow of value, you do not want wait times. People waiting on anything. People waiting on a resource, a person or a hardware or some other contentious resource जो कि आपने you need to make it available. ठीक है? कोई मिसाल पे somebody has to do performance testing और वो जो performance testing का जो setup था, cluster था, वो एक bottleneck बना हुआ है. ठीक है? You don't want that. ठीक है? You want to remove all the wait times as much as possible. Cool? That new thing is a slightly longer running thing. How do you manage that? Because that becomes now your resource is no longer 80, let's say at 100 or 110, but then it has to come back to 80. What's the practical way of managing that? Yeah, 2 comments. One is you have to differentiate between, अभी हम इसमें नहीं गए कि what's the difference between planned versus unplanned activity. Then project versus more ticket oriented work. ठीक है? तो मिसाल तौर पे मैं बंदा हूँ, हेल्प डेस्क पे बैठा हूँ, या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा, और मेरे लिए रिक्वेस्ट आती हैं. अब हो सकता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाए, हो सकता है कम रिक्वेस्ट आ जाए. सो दे डू सम प्रोजेक्शंस ऑन दैट. ठीक है? दूसरा एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है. वो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है ना, अक्सर प्लान बना हुआ होता है. सो हाउ गुड आर यू इन प्लानिंग वर्सेस व्हाट इज़ नोन, व्हाट इज़ अननोन, अनसर्टेनिटी को देखते हुए बफरिंग करना, वो सारी चीज़ें. बट यू डोंट एंड थिंग्स ऑलवेज कम अप. ठीक है? And also you want to leave some breathing room for people as well. ठीक है? वो जो गूगल वगैरह में नहीं कहते यार 20% of the time one week they do your own things. I'm pretty sure कि यार वो कभी वो अपना काम और भी कर लेते होंगे जो ज़्यादा वो होता होगा. लेकिन ये कि you gotta leave room for creative work. वो जो मेरी अपनी टीम है, and depends on this as well. ज़रूरी नहीं है कि हर काम में ना आप कहें कि यार देखो ये तो
इसने तो VM बनाने हैं, मजदूर टाइप बंदा है, ठीक है, ये बस ठकाठक किए जा रहे काम। नहीं, you need to give him time. Maybe he can do some automation. Maybe he can enhance that so that, you know, the flow of value becomes even better. तो if you don't allow that, यानी वो जो feedback loop की हम बात कर रहे थे, वो feedback का क्या करेंगे? feedbaक तो कोई भी आ सकती है, ठीक है, तो हाँ बैकलॉग पे डाल देंगे और फिर उधर से उठाएंगे, लेकिन यू हैव टू, ये जो लोग टिकट पे काम कर रहे हैं, डू दे फॉलो कानबान और डू दे फॉलो सम काइंड ऑफ एजाइल टिकटिंग, यानी दैट्स अ एरिया टू लुक एट, राइट। तो एंड सेकेंडली अभी थोड़ा सा 1-2-3 आगे टॉपिक चलेंगे ना, तो इट माइट आंसर योर क्वेश्चन। इफ इट डजंट आस्क मी अगेन, आई माइट नॉट गिव द आंसर बाय द वे, बिकॉज आई डोंट नो। अच्छा जी, अगला, सो टास्क स्विचिंग। अब ये तो कॉमन वो है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक बंदा है, उसको आपने 3 काम दे दिए, हर बंदा उसको काम करने में हफ्ता लगता था, 7 दिन उसने काम किया, टास्क 1 पूरा कर दिया, टास्क B पूरा कर दिया, टास्क C पूरा कर दिया, 3 हफ्तों में ना तीनों टास्क पूरे हो गए, बल्ले बल्ले। लेकिन इन रियलिटी इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो आ जाते हैं जी, वो मेरे भाई का रिश्तेदार है जी, वो फलाना जी, आप मेरे वो है, तो मेरे भी काम जल्दी करें। तो इफ़ यू आस्क देम, समटाइम मैनेजर्स आस्क देम, चलो यार वो बस शफलिंग करना, उसको जस्ट टेल देम यार प्रोग्रेस है। कभी कुछ और रीजंस भी होते हैं, कहते हैं यार you need to start early, maybe we don't know certain things over here, so if we do something over here we'll find out and we can do something about it, ठीक है। तो ये तो बड़ा लेट हो जाएगा अगर आप इस पर काम करेंगे। Anyways, the problem is when you do task switching, ये तो रिसर्च हुई हुई है, अगर यानी जो मैंने सुना हुआ है, it takes 3 to 4 hours for you to get the same level of focus back, ठीक है। वो आपकी कोड रिपोजिटरी है, फलाना डिज़ाइन, उसकी वो कॉन्टेक्स्ट था, वो सारा समझेंगे, तो it takes few hours for you to get back the same level of focus so that you can be as productive as possible. Now, focus matters a lot, right? तो चलो हम कहते हैं यार 7 दिन का काम था, टास्क स्विचिंग हो रही है, आप पहला दिन एक टास्क पे लगाते हैं, दूसरा दिन तीसरा दिन स्विच करते रहते हैं, एंड वी से कि ओवरहेड 1 दिन का है। बाय द वे दिस इज़ वेरी वेरी कंजर्वेटिव, यानी 7 दिन के बजाय उसको 8 दिन लगेंगे। अगर आपने ये किया तो आपके तीनों टास्क वीक 4 में जाके कंप्लीट होंगे, ठीक है। एंड बाय द वे दिस इज़ अ गुड यानी बेस्ट केस सिनेरियो इन माय ओपिनियन। नॉर्मली इट्स और जो क्वालिटी का फ़र्क आएगा, क्योंकि फोकस नहीं था या वो चीज़ें वो अलहदा से हैं, वो अननोन है। तो द पॉइंट इज़, जो अगर आपने कानबान या एजाइल को देखा, कहते हैं वन ऑफ द गोल इज़ टू रिड्यूस विप। विप इज़ द टर्मिनोलॉजी, विप स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। You want to reduce work in progress, because right now all of these are work in progress. This hasn't started, so it's not work in progress, right? So he finished it, then he moved to the next one. So what you want to do is take something, finish it, take the next one, finish it, take the next one. Now what would उसमें चाहिए क्या होगा? How do you prioritize? ठीक है, तो your priority might be, depending on the criteria, effort level, customer impact, all of those things, dependencies, वो आप उसको determine करोगे, यार ये इसकी priority है, but do it and then move to the next thing. जो आपकी leadership है, आपके leads हैं, आपके project manager हैं, their job is to make sure that they do the prioritization. Prioritization के लिए ना कभी कभी होता है कि यार मैं यानी maybe it's not at इंडिविजुअल लेवल, वो थोड़ा सा लीडरशिप या कोई एज अ टीम यू हैव टू डिसाइड कि यार क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन करना कभी भी आसान काम नहीं होता, कभी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हाई प्रायोरिटी आ जाती हैं, फिर क्या करें, ठीक है। फिर आपको बड़े बॉस के पास जाना पड़ता है, सर जी ये सारे काम तो नहीं कर सकते, अब क्या करें। वो कहेगा अच्छा यार वो फलाने कस्टमर को थोड़ा सा ज़रा पीछे रखते हैं, इसका पहले कर लो काम। तो बट यू पिक इट अप, यू डू इट एज मच एज पॉसिबल, फिनिश इट, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन रिस्क। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। वो ये कह रहा है कि व्हेन यू हैव हैंड ऑफ और यू हैव मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, यानी देयर इज़ फ्रॉम वन थिंग यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टेप्स डू यू हैव इन्वॉल्व, हाउ मेनी हैंड ऑफ्स, you can either get that one step done on time or it will be late, ठीक है। तो अगर आपके multiple steps हैं तो the chances of you, simple statistics, ठीक है, probability के have chance of you to getting things done on time is every step getting done on time। तो वो क्या है, 1 out of 2 raised to the power n,
ठीक है, सिंपल वो है। तो इफ़ यू हैव वन स्टेप, आपका 50% चांस है कि यार आप इसको टाइम पे कर जाएंगे, वो एक ही स्टेप है। अगर 2 स्टेप आ गए, 2 raised to the power n 4, 1 out of 4 चांस होगा। और अगर 3 स्टेप हो गए, 1 out of 8 चांस होगा आपका वो चीज़ टाइम पे करने का। तो वो VM मांगा था, वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ने VM दिया, फिर वो सिक्योरिटी वाले ने उसकी फायरवॉल बनाई, फिर तीसरे ने उसको स्टोरेज दिया, किसी ने DNS दिया, 4 स्टेप इन्वॉल्व है। तो वो हर बंदा बिजी है, ठीक है, यानी अब नाउ आई ब्रॉट इन अनसर्टेनिटी इनटू थिंग। तो वेदर आपने कहा था यार 2 दिन में हो जाए ना तो बड़ा अच्छा होगा, वैसे तो काम आधे घंटे का भी नहीं है, खैर हम 2 दिन आधा दिन उनको देते हैं, नहीं वो इज अ वेरी, और उनका SLA 5 दिन है हर एक का, ठीक है। तो यानी यू कैन इमेजिन हाउ इट एड्स अप, बिकॉज हर डिपेंडेंसी में स्पेशली इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, वो दूसरी टीम के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज इफ यू कैन रिमूव अ डिपेंडेंसी, इट विल डबल योर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ऑन टाइम। इफ यू कैन, यानी इसका क्या तरीका हो सकता है, हम कहें यार वो जो, बाय द वे व्हाई डिड वी हैव 4 पीपल वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ VM? क्योंकि एक वर्चुअल मशीन का काम था, एक साइबर सिक्योरिटी का था, एक DNS वाला नेटवर्क का होगा मेरा ख्याल है बंदा, ठीक है, और एक स्टोरेज का बंदा है, 4 एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व है। अब वो कहते हैं यार शुरू में आप कहेंगे ना यार अच्छा अब हम ये तो 4 एक स्पेशल एरिया है और हमने एक अगर देना है तो अच्छा है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दें ताकि ही डजंट मेक अ मिस्टेक। लेकिन हमने 4 डिपेंडेंसीज क्रिएट कर दी, ठीक है, और उनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू है, सारा डिलेज आ रहे हैं। वी कैन से यार ऐसा करते हैं, एक बंदे को लेते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा हर एरिया सिखा देते हैं और वो जो है ना पूरा का पूरा VM भी बनाएगा, DNS भी देगा, सारा कुछ करेगा। और क्या है कि अगर बहुत कोई यानी इसमें वो है तो हम एक्सपर्ट से रिव्यू करा लेंगे, वैसे तो इसकी रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बड़ी औखी चीज़ आ गई है तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम कहेंगे यार ये स्पेशल टिकट था, इसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व होना है, तो उसके लिए हम फिर डिपेंडेंसी क्रिएट कर देंगे, वरना एक ही बंदा कर दे तो ये होता है, अच्छी बात है, हमने डिपेंडेंसी हटा दी। तो दैट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है, कि यू कैन डू दैट। ये इसी तरह ही है जैसे मैं कहूँ कि मेरी एक डेवलपमेंट की टीम है और वो बैक एंड बना रही है और ज़बरदस्त उन्होंने सर्विस भी बना दी, APIs भी बना दी, लेकिन उसकी मोबाइल ऐप थी, मोबाइल ऐप तो मोबाइल की टीम बनाएगी। अब आपने क्या किया है, यू हैव क्रिएटेड डिपेंडेंसी ऑन मोबाइल टीम। ना मोबाइल टीम जो है ना वो अवेलेबल है कि नहीं, उनके पास और लोग भी आ रहे हैं, वो कहेगा अच्छा ठहरो यार ठंडा खाओ, ये मैं तुम्हें महीने के बाद तुम्हारी ऐप पे काम करूँगा। तो नाउ यू हैव क्रिएटेड डिपेंडेंसी। तो एक असूल ये है कि यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। वो जो कहते हैं ना फुली फंक्शनल क्रॉस फंक्शनल टीम हो, उसमें ये कि वो जो DevOps का कॉन्सेप्ट है कि जी यू बिल्ड इट यू रन इट, वो है यू बिल्ड इट, you deploy it, you support it, you monitor it, you run it, you do everything, you remove all the dependencies। तो अब कहेंगे यार फिर इसका मतलब है कि मोबाइल का बंदा उसमें डालेंगे, मोबाइल के तो बंदे ही बड़े थोड़े हैं यार, ये स्पेशलाइजेशन है। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि कहते हैं यार शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि मोबाइल के बजाय ना ये जो टीम अपनी है इसी को दे दो, ये खुद ही करेगी, लेकिन वो कहेंगे हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो देन व्हाट यू डू इज़ यू आस्क द मोबाइल टीम टू बिकम अ एनेबलिंग टीम, एंड व्हाट दे विल डू इज़ दे विल एनेबल दीज पीपल, ठीक है। और एंगेजमेंट मॉडल क्या होगा, दे विल वर्क विद देम कोलैबोरेटिवली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू टीच देम, कोच देम, सो दैट दे कैन डू रेगुलर मोबाइल स्टफ। एंड इफ देयर इज़ समथिंग बड़ी कोई पिक्यूलियर चीज़ आ गई जी, मोबाइल के बंदे आओ यार हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, तो वो थोड़ी देर के आके हेल्प करके वापस चले जाएंगे। बट यू विल बेसिकली ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ इट। दैट्स वाई ये जो होते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर्स, दे आर वेरी प्रेशियस, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो भी आगे आएगा कि यू हैव पुट अ लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देम, यू आर ओवरलोडिंग देम, so that's called cognitive overload, we'll talk about it anyway। So your goal should be to remove dependencies as much as possible, ठीक है। आप बैठे हैं जी के हमने मोबाइल की एग्जांपल दी ना, हमने दूसरी एग्जांपल दी उसकी टिकट वाली, वो जो VM क्रिएट होना था। आप बैठे हैं यहाँ पे, आपकी एक टीम कहीं रिमोट बैठी हुई है, लेट्स से यूरोप में कहीं बैठी हुई है, ठीक है। अब आपकी डिपेंडेंसी है और कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल है, टाइम जोन डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, ठीक है।
शक्ल नहीं देखते उसकी, यानी आपको पता है कम्युनिकेशन, अगर मैं यही सेशन जिस स्पीड पे मैं अभी दे रहा हूँ अगर मैं ऑनलाइन दे रहा होता तो स्पीड ना होती, वो आपको ना मेरे खूबसूरत चेहरा भी देखने को ना मिलता, मेरे एक्सप्रेशंस भी आपको देखने को ना मिलते, ठीक है। तो वो जो है ना कम्युनिकेशन में कमी आ जाती। अब आपकी रिमोट टीम है, आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना है, तो मे बी नाउ यू डू रीस्ट्रक्चरिंग, आप कहें नहीं यार वो लोग एक इंडिपेंडेंट चीज़ उठाएं एंड वी शुड हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, और वो जो वहाँ पे काम हो रहा था वो यहाँ पे लेके आ जाएं, वी मूव द टीम्स अराउंड, फंक्शंस अराउंड। या आप कहें कि यार हम उनको ऐसा काम दें कि हमें उनके साथ जो इंटरफेस है ना वो बड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाए, ठीक है। चलो एक वी विल टॉक अबाउट इट। हम एक स्टार्टअप बनाते हैं, वैसे साहब ने बनाई थी एक क्रिक क्या था, क्रिक आउट है, उसमें लेट्स से 4-5 लोग थे शुरू में, तो इट्स अ स्मॉल टीम, ऑसम कोलैबोरेशन गोइंग ऑन, ठीक है। अब वो टीम बढ़ती गई, 7, 8, 9, 10 हो गए, 12 हो गए, आपने कहा यार बहुत ज़्यादा हो गए, लेट्स डिवाइड देम इनटू 2, ठीक है। 18 हो गए, अब 3 हो जाए, अब आपकी ना अलग-अलग टीमें बन रही हैं, अब नाउ यू हैव क्रिएटेड साइलोस, doesn't matter they are sitting next to each other, they're working. Now not only that you have to do the team structure, you have to now figure out how they will collaborate and communicate with each other, ठीक है। अब लेट्स से वक्त के साथ होते होते वो 3000 हो गए, अब क्या हर बंदे को दूसरे बंदे के साथ बात करने की ज़रूरत है? नो, एक्चुअली वी डोंट वांट एवरीबडी टू बी टॉकिंग टू एवरीबडी एल्स, ओह मेरी इतनी ऑसम ऑर्गेनाइजेशन है, हर दूसरा बंदा दूसरे का बडी है, नो वी डोंट वांट दैट, ठीक है। उसमें टाइम ज़ाया होगा। वी वांट द राइट पीपल टू बी टॉकिंग टू द रेलेवेंट पीपल, ठीक है। और वो और हमारा गोल क्या होगा, हम कहेंगे यार उसको बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े दूसरे के साथ, विद इन टीम तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी टीम के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करनी ना पड़े, यही बात कर रहा था ना इसी स्लाइड में। तो बल्ले बल्ले क्या ये हो सकता है? तो उसके लिए यू नीड टू नाउ स्ट्रक्चर योर वर्क एज वेल अकॉर्डिंगली। स्ट्रक्चर ऑफ वर्क का मतलब है हाउ डू यू डू थिंग्स एंड व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द थिंग्स, यानी आपके प्रोसेसेस क्या है और आपका सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन क्या था। तो इसीलिए पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स, वो कहते हैं ना कि यार मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। तो मोनोलिथ तो एक बहुत बड़ा हॉच पॉच है, अब उसमें 20 लोग काम करें, उन सबको एक दूसरे के साथ ना बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। माइक्रो सर्विसेज वेरी क्लीन, इंडिपेंडेंट, API, दैट्स माई कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ आई मेंटेन दैट यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो दैट्स अनदर रीज़न टू मूव टूवर्ड्स माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज एज यू विल ग्रो you need to be able to compartmentalize, divide and conquer, and then once you divide, everything eventually has to orchestrate and work with each other. But what are those modes? Those are APIs. So API first design, service oriented architecture, those kind of things, you know, they service orientation in general saying helps you with a design that helps splitting large teams into smaller logical units, ठीक है। तो anyways, that was a good digression. Let's move on. कोई और सवाल इससे? नहीं। अच्छा जी, टेस्टेड नॉलेज, टेस्टेड नॉलेज की बलासी। वी कॉल आवरसेल्व्स नॉलेज वर्कर्स, राइट, क्योंकि आपने बड़े पैसे लगाए हैं, डिग्रियां हासिल की हैं, माशाल्लाह, वालिदैन ने आप पे बड़ा खर्चा किया है। और we talked about knowledge workers last time. Right, so we talked about learning culture, and we talked about yani how you can learn new existing knowledge or you can create new knowledge, ठीक है। And I gave you this example of, you know, the guy working in a steel foundry, ठीक है। तो वो बंदे ने तस्वीर दिखाई, उसने कहा यार ये स्टील फाउंड्री के ना मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे, याद है आपको ये स्टोरी कि नहीं? अच्छा, द गाय इज़ वेयरिंग अ थर्मल सूट और उसके हाथ में एक मेटल रॉड है और वो ना जो मोल्टन वो उसमें वो आ रहा है ना आयरन और उसमें वो डंडे मार रहा है। और उस स्टील फाउंड्री में ना इंजरी रेट 10% था। अब 10% बहुत हाई इंजरी रेट है, यानी साल में 10 में से एक बंदा ज़ख्मी होगा, हो सकता है उसकी हैंडीकैप हो जाए, परमानेंटली मर भी सकता है।
तो मैं तो कहूँगा मैं कभी इस जगह पे काम ना करूँ। आपको वैसा आप कहना यार आओ ये मेरी टीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लेकिन कभी कभी इधर जो है ना ज़ख्मी हो जाता है बंदा, तो आपको वालिदैन भी नहीं भेजेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि यार हाउ कैन वी सॉल्व दिस, बिकॉज वी हैव प्रॉब्लम्स। तो मैनेजर तो आके सॉल्व नहीं कर सकता, मैनेजर को तो पता ही नहीं है, वो तो यानी वो मैनेजर बाबू आदमी है। The people on the floor, manufacturing floor, they are closest to the problem. They see the problem, they live the problem. So all you have to do is, management has to do is create an environment where they can all come together and talk about the issues and come up with some solutions. Okay? And if they are doing something, they find a solution from somewhere else, somebody else has solved it, they are gaining existing knowledge. And if they come up with solutions which are new, okay, then they are creating new knowledge. And once they figure out something, then they teach everybody else, and they somehow document it or do some tutorials to spread the knowledge. Okay? So this is a formula that I just explained. See the problems when they occur, not later on, because they will fester and they will get kharab. And everybody swarming together to solve the problems, and then they spread it. And the leadership has to create the right type of safe environment and allow them to do that. So the guy who we thought is a labor class guy, all of a sudden now we can think of him as a knowledge worker. So it's not high degrees that make us knowledge worker, it's how we, how we solve problems. ठीक है? तो knowledge जो है ना उसकी एक example है tacit knowledge उसको कहते हैं. ठीक है? Tacit knowledge ये है कि that you know like intrinsically. मिसाल के तौर पे आप बच्चे को ना साइकिल चलाना सिखाएं, तो आप उसको कहते हैं यार बेटा ऐसे साइकिल का हैंडल पकड़ना है, ऐसे पैडल दबाना, फिर बैलेंस रखना। तो आप जितना भी समझाते हैं बच्चे को नहीं समझ आएगी, बच्चे को छोड़े बड़े को नहीं समझ आएगी। वो कहे जब तक आप ना उसको पकड़ के लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के बाद ना मैजिक विल हैपन एंड ही इज़ साइकिलिंग हिमसेल्फ। फिर थोड़ी देर के बाद ना उसका बैलेंस लूज होगा, तो आप खैर ओ क्रैप मैंने तो उसको ब्रेक लगाना नहीं सिखाई। ठीक है। सो बेसिकली दैट्स टैसिट नॉलेज, राइट। सो यू कांट जस्ट डॉक्यूमेंट इट। अब ये ना कि वो क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं यहाँ पे डेवऑप्स में, आपको फारे कर देते हैं हम, ठीक है। हमको जाने से पहले ना यार डॉक्यूमेंटेशन करके जाना कि क्या पाइपलाइनें कैसे बनती हैं सारी, जो आपने लिखी है ना सारी। तो आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, जो टैसिट नॉलेज है ना वो ऐसे नहीं पास हो सकता। नाउ इन ऑर्डर बाय द वे, इन ऑर्डर टू पास टैसिट नॉलेज, यानी उन्होंने जो स्टडी की है कि इफ़ यू एट ईच हैंड ऑफ 50% of the test knowledge conservatively, यानी ये वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा लूज होता है। 50% of the test knowledge is not handed over। यानी हमारी एक टर्म यूज़ होती है, हमारी जो डेवलपमेंट की टीम्स है ना, वो जब ऑपरेशंस की टीम को वो देती हैं, क्योंकि अभी हम ट्रू डेवऑप्स की तरफ नहीं गए, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो जो पुरानी जो टीम्स जो VM बेस हैं वो खैर एनीवेज, वो उनको ना एक हैंड ऑफ करना पड़ता है। दे यूज़ दैट टर्म एक्चुअली। हैंड ओवर दे दो जी, हैंड ओवर। वो हैंड ओवर में वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, but the tacit knowledge is not being handed over. So at every step it gets reduced by 50% and it very quickly diminishes. ठीक है? तो you need very hi-fi modes of knowledge transfer. आप बैठोगे उसके साथ डीप उसके साथ सेशंस लगाओगे, ठीक है। इसीलिए जब हमारा कोई बंदा नया टीम में आता है ना, इट टेक्स हिम टाइम टू एक्चुअली इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज आर डूइंग। ये नहीं है कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो तुम्हें आ जाएगा, आपको बताना पड़ता है यार ये रिपोजिटरी है, फलानी चीज़ है, इधर से ये होता है वो होता है। तो वो टैसिट नॉलेज इज़ ऑल ओवर देयर। सो दैट्स अनदर रीज़न टू रिड्यूस हैंड ऑफ्स। ओके, तो वो जो है ना मोबाइल की टीम थी, यार वो हमने नई रिलीज़ की है, वो मोबाइल में ना ये इन्हांसमेंट्स करनी है, तो somebody will have to do knowledge transfer to them कि यार हमने क्या किया था बैक एंड पे, उन्होंने मोबाइल ऐप में क्या करना है। हालांकि मोबाइल ऐप उन्होंने नहीं बनाई होगी, ठीक है। काफ़ी सारा हैंड ऑफ होएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, क्या क्या चीज़ होंगे, सेशंस चलेंगे, वो टैसिट नॉलेज भी ट्रांसफ़र होएगा। फिर इसी तरह आपका जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने आपका ना मेरी 5-6 जगहों पे हमारी टीम्स थी, तो वी यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इन जस्ट डूइंग नॉलेज ट्रांसफ़र। आज क्या हुआ था, हम कहते हैं ना कि यार एमुम्बा जो है ना वो इल्म के साथ काम करना शुरू कर दे और आपकी टीम है यहाँ रिमोट बैठी हुई है, लेकिन यार ऐसा करो 2 बंदे ना, एक सीनियर बंदे उधर भेजो एक कोऑर्डिनेशन के लिए। वो रोज़ाना देखेंगे हो क्या रहा है, वो रोज़ाना बैठ के 1-2 घंटा लगाएंगे इनको सिर्फ ये बताने कि इधर हुआ क्या था। और ये बड़ा ज़रूरी है, जस्ट टू पास द टैसिट नॉलेज, डू द कोऑर्डिनेशन,
so that they are at the same page. ठीक है. अच्छा, बाय द वे और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं ना रिमोट में. मोटिवेशन लेवल, वो यू डोंट सी समबडी, दे आर नॉट ऑन योर माइंड एनी मोर. कहते हैं कर क्या रहे हैं वो, ये अक्सर होता है. वो करते क्या है यार, वो तो कुछ करते ही नहीं है. आप भी इधर से कहेंगे यार वो क्या उल्लू के पट्टे हैं, वो कुछ करते ही नहीं है. ठीक है. तो दीज आर ऑल द इश्यूज दैट कम विद हैंड ऑफ्स. ठीक है. तो मैं तो बड़ा एक्सट्रीम पे ले गया, को लोकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल ही कोर रीजन में बैठे हैं. दिस इज जस्ट द सेम इंफॉर्मेशन. ठीक है, यानी जस्ट ग्राफिकली. सो इफ दिस इज योर tacit knowledge, it comes down really fast. ठीक है. And the coordination risk, getting things done on time goes, your risk goes really high as number of steps or handoffs are increased. ठीक है. So common sense, right? It's not, this is probably, or we already knew this stuff, but it's not something that we keep on our minds. So the reason I got interested in this was, in slides में है वो example, against बड़ी औखी example है. The guy showed a team with regular development. इसी तरह offshore टीमें थी, components थे, कोई back end, front end, UI और इस तरह की चीज़ें, DevOps का भी था उसमें. उसने dependencies दिखाई, and they were real. We have those dependencies as well. फिर उसने, it was a real life example, उसने कहा कि ये इनका ना इतना story points हैं, अब estimate हुई, ये stories उठानी है. तो story point इतने थे कि उस capacity में सबकी capacity add करो ना, simple math, तो वो एक sprint में उसको कर सकते थे. उनको लगे 4 sprint. फिर उसने कहा कि we removed the dependencies, and instead of 4 dependencies, we only left 1, and it was also a partial dependency. So they actually were able to do it in 1 sprint. It makes a huge difference. फिर उसने कहा कि ये तो सिर्फ पार्शल थी वो वैल्यू स्ट्रीम, इसमें आप बाकी भी लोग डाल दें. तो जब उसने वो बाकी डाला तो और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज आ गई. ठीक है. यही जो मैं आपकी VM की एग्जांपल दी इस तरह, तो you have to remove those dependencies. That's the name of the game, right? Remove dependencies, remove handoffs. Don't load up everybody like crazy. 80%, 70%, 60%, depending on जितनी भी आपकी nature of your work, how you guys do things. Stuff like that. Acha, this is very interesting. Cognitive. Any questions so far? क्योंकि हम और की चीज़ पे जा रहे हैं. So eventually, कोई future slide इस चीज़ को भी address कर रही है कि non-ticket based team में क्या होगा? मैं example देता हूँ. ये सारी example में बड़ी connect कर पा रहा हूँ कि tickets वगैरह लोग हो रही हैं. नहीं यार, मैं दूसरी example दिया, इसके बाद मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो normal team होती है, जो estimate करके काम कर रही है, वो वैसे भी बहुत सारी जगह buffer रखती है. ठीक है. और उसके बाद उनकी मतलब उनकी different limitations होती हैं. उनकी ये limitation नहीं होती कि उनका खाली wait time बनता है. ये जो example दी थी ना मैंने आपको, maybe you don't have it. यानी मैंने आपको कहा मोबाइल की टीम है, that's delivery team. मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ. आपकी ऑफशोर टीम्स हैं. ठीक है. ये होता है डिलीवरी में, हम अक्सर मैंने देखी हुई है. ठीक है. या आपका इवन जो आपने टिकट खोलना है दूसरे के लिए कि मुझे VM दे दो, या VM तो चलो ज़रा एक स्पेसिफिक एग्जांपल है. हाँ, VM भी हो तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि यार आप जब क्लाउड पे जाते हो तो आप तो टिकट नहीं खोलते हो, आप तो कहते हो सबमिट, बूम, आपको VM मिल जाता है. सो इफ़ योर, यानी उन्होंने क्या, यानी आप सोचें ना, अब Amazon है, Google है, आप कहें यार हाँ मुझे टिकट मिलेंगे और मैं जो है बंदों को असाइन करूँगा, वो VM बना के देंगे. तो उन्होंने एक और पैटर्न अप्लाई किया. हमने क्या पैटर्न अप्लाई किया था कि यार अभी फुली ऑटोमेटेड नहीं है, तो एक बंदे के हवाले कर दो जो उसने सारे काम करने हैं, ताकि डिपेंडेंसी बीच में से निकल जाए. क्योंकि ये मुमकिन था, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी बेसिक खाना शिफ्ट लेफ्टेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड. उन्होंने मज़ीद का एक और पैटर्न, उन्होंने कहा यार ऑटोमेशन कर दो, उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिकेम एज अ सर्विस, वी हैव रिमूव द डिपेंडेंसी. ठीक है. नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर टीम हैज़ टू जस्ट मेंटेन द सर्विस. ये वही सर्विस ओरिएंटेशन वाली बात है बाय द वे. ठीक है. यानी मे बी इट वाजंट ईजियर टू अंडरस्टैंड, बट what they did है, they have applied service orientation, modern architecture, and they have made it available as a service. Now what they have to do is they have to maintain the service, and the service can scale. They can just throw more hardware at it. They don't have to add more people to it. Agents के यार ये सर्व करेंगे उसको. ठीक है. थोड़ा सा क्लियर हुआ. अभी आगे और भी एक वो स्लाइड में मैंने कुछ पैटर्न्स लिखे हुए हैं. कोलोकेशन कर दो.
ठीक है, एक और है, यानी इस तरह की चीज़ें। नाउ यू गिव मी, नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ इंटरैक्टिव सेशन है, आप प्रॉब्लम बताओ, बैठ के हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पैटर्न्स होंगे कुछ। अच्छा, कॉग्निटिव लोड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और ये याद भी रखना है, क्योंकि जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा ना, जब अगली स्लाइडें तैयार होंगी तो फिर वी विल टॉक अबाउट इट अ लॉट। कॉग्निटिव लोड एक उसको कहते हैं एवरीथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड टू गेट समथिंग डन, ठीक है। अगर आप पराठे बना रहे हैं ना किचन में खड़े हुए, तो आपको ये समझना है कि यार गैस को कैसे ऑन करना है, चूल्हे को कैसे जलाना है, तवा नॉन स्टिक होगा या दूसरा वाला होगा, आटा कैसे गूंदना है, नमक कितना डालना है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड टू गेट थिंग्स डन, ठीक है। इट्स बिकॉज यू नो वी डोंट रियलाइज दैट, बट यू नो वी आर, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम काफ़ी चीज़ों को लोड ले सकते हैं, बट वी हैव लिमिट्स, ठीक है। तो इफ़ यू इंक्रीज द कॉग्निटिव लोड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ द टीम, वो टीम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। अब मैं उसकी एग्जांपल्स देता हूँ। आई यूज्ड टू रन द डेवऑप्स टीम, ठीक है। डेवऑप्स का मिशन आज से 4-5 साल पहले हमने शुरू किया था, 6 साल पहले। हम रेगुलर काम करते थे, हमने जिरा मेरा था हमारे पास एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के लिए, SDLC के लिए, हम बैम्बू को यूज़ करते थे, बेल्ट शील्डें बनाते थे, लाइफ वॉज गुड। हमें कीड़े ने काटा, हमने कहा नहीं हम पाइपलाइनें बनाएंगे, ऑटोमेशन करेंगे हम, ठीक है। तो हमने जो है ना, अब वो मिलता भी नहीं है कोई ऐसे कि मैं कोई ना पाइपलाइन एज अ प्लेटफॉर्म कोई ले लूँ, वो टूल चेन आपको खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। हमने बड़ी मेहनत की, हम बड़े जोश में थे, फुली मोटिवेटेड, ठीक है। टीम वही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना कॉग्निटिव लोड हम खुद बढ़ा रहे हैं। हम जेंकिंस को लेके आए, नेक्सस को लेके आए, वॉल्ट को लेके आए, आर्गो CD, पैस जो ओपन शिफ्ट की टीम थी क्यूबरनेटिस, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की, पाइपलाइनें लिखना शुरू की, अपनी लाइब्रेरी बनाई जेंकिंस की रीयूजेबिलिटी के लिए। अब हमारा ना नंबर ऑफ टूल्स बढ़ते जाए, हर टूल्स को मैनेज भी करना है, एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, उसको समझना भी, ये सीखना है, उसके बड़े औखी औखी चीज़ें होती हैं, काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वर्ल्ड में क्या मसला है, पता लगा जी वो HCDB है क्या है उसका, वो सही कन्फिगर नहीं किया हुआ हमने। अब वो उसको समझने के लिए हमने बंदे को 2 हफ्ते लगाया तो उसको समझ आई, ठीक है। अब हमारे पास टाइम ही नहीं था उसका, क्योंकि हमने अपना लोड इतना बढ़ा दिया। ओ लोग सुपर एक्साइटेड हैं, लाइनें लग गई हमारे पास लिटरली, ओ मेरा ये करो, मेरी ये पाइपलाइन बनाओ। अब हम कहें नाउ वी वर स्प्रेडिंग आवरसेल्फ थिन, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम चीज़ों को ना गहराई में जाएं या अपना कोई चीज़ें वो करें, बनाएं। ऊपर से 2 बंदे छोड़ के चले गए 4 बंदों की टीम थी, 2 बंदे और लेके आए, बड़े काबिल बंदे लेके आए, लेकिन उनको 5-6 महीने लगे इस कॉम्प्लेक्स टूल चेन को समझने के लिए और रैंप अप होने के लिए। उस वक्त हमारी उन 6 महीने में हमारी जो 2 रह गए थे ना, उनकी भी प्रोडक्टिविटी नीचे चली गई। क्यों? बिकॉज दे हैव टू डू लॉट ऑफ नॉलेज ट्रांसफर। वो टीमिंग एंड फॉर्मिंग और वो जो 4 स्टेप होते हैं ना टीम के, वो दोबारा से हमें करने पड़े। एनीवेज द पॉइंट इज वी इंक्रीज द कॉग्निटिव वर्कलोड ऑन द टीम, ठीक है। वी हैव टू रिकग्नाइज दैट, ठीक है। अब होता क्या है कि अब टीम के पास जाए ना कि यार अब तुम हो गए हो 5-6 बंदे हो गए, ऐसा ना करते हैं, वी विल डिवाइड एंड कॉन्कर, तुम ये संभालो ये संभालो। अब ये वही टीम है, वो कहती है यार, वो ज्वाइन उन्होंने क्या किया था, हमने डेवऑप्स सीखना है, हम डेवऑप्स के ऊपर ना हाथ साफ करेंगे। तुम हमें क्यों मैनेजर भाई आप क्यों हमें ना अलग-अलग कर रहे हैं, हमें कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं। वो लड़ेंगे आपके साथ, अक्सर ये होएगा, ठीक है। समझदार हो तो अलग बात है। वो कहेंगे यार आप हमारे काम को क्यों बांट रहे हैं, क्यों मुझे ना आपने बस ये वॉल्ट और आर्गो CD दे दिया है, दूसरे को नेक्सस दे दिया है। मैं चाहता हूँ मैं हर चीज़ को समझूँ, क्योंकि रिमेंबर दीज वर हाईली मोटिवेटेड गाइज among in the whole team. This is how I selected them. But the problem is now when I tell them, hey guys, you know, we're gonna reduce your scope of work so that you can focus. ठीक है, वो अगली स्लाइड में आएगा। तो they will fight against you. लेकिन we are doing it for themselves because it becomes a serious motivation issue. And let's talk about that. But let's cover this slide. So, cognitive workload is everything that you need to remember. ठीक है। अब ये नहीं है कि यार मैं कहूँ कि यार अभी तो मैं पराठा बना रहा हूँ, मुझे पराठे का काम है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना कि यार बावर्ची है, उसको मैं कहूँ तुमने चाइनीज़ भी बनाना है,
तो वो भी सीखो। तो तुमने जो है ना वो पाकिस्तानी खाने भी बनाने हैं, तो फलाने खाने भी बनाने, तो अरबी खाने भी बनाने, तो वो कहेगा यार बस करो, कितना तेल निकालोगे मेरा। वो इस ह्यूमन कैपेसिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। even though he might be working on one thing, and guess what, if पाइपलाइनें सारों की चल रही हैं, ठीक है, खाने सारे बन रहे हैं, तो फिर तो आपका और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। आपको टीम चाहिए, बड़ी टीम चाहिए। एनीवेज, सो इट्स द प्रॉब्लम बिकम्स एक्चुअली, ये बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आसान नहीं है। हमने इस वजह से काम किया था। अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, कॉग्निटिव कैपेसिटी कितनी है टीम की। आपकी डेवऑप्स की टीम में कितने बंदे हैं? नहीं, डेवऑप्स की टीम में कितने बंदे हैं? 17। ओह यार, मेरी 3000 की टीम है, उसमें 4 बंदे हैं यार। डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन डेवऑप्स। maybe I can say maybe we have around 10 people. गुड यार। ऐसे मैंने वो स्लाइड डालनी है कि हद से ज़्यादा बंदे भी हो ना तब भी नुकसान होता है। और बाय द वे, ये जब स्लाइड्स मैं बना रहा था ना, तो मेरा बॉस मुझे कहता है कि यार कामरान, कोई ऐसे फॉर्मूले निकालो कि हम HR के पास जाते हैं ना बंदे मांगने के लिए, तो वो हमें पड़ जाते हैं कि नहीं तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तो हम उनके पास ना सॉलिड तरीके से बिजनेस केस बना के जाए। मैं ये स्लाइडें ले आया। अब अभी तक तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी, इसमें ये लिखा कि यार अपना जो कर रहे हो वो सही तरीके से करो, क्योंकि द पॉइंट इज एडिंग मोर पीपल डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्चुअली वो ख़राब कर देता है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ द ओनली लाइक रीज़न, लॉजिकल रीज़न वेयर यू एक्चुअली डू सम काइंड ऑफ कैपेसिटी साइजिंग कि यार कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कितनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है उनको कि नहीं दी जा सकती। और अब नाउ यू हैव टू ग्रो द टीम। And by the way, I did those exercises. We were only one guy, and then we grew to 4. And in our organization, justifying another headcount is very, very difficult. But we did that. जब cognitive load is not considered, the teams are spread thin. This is what I was talking about. Trying to cover an excessive amount of responsibilities and domains. Domain भी ज़्यादा important है कि पाकिस्तानी खाने, विलायती खाने, सारे चाइनीज़ खाने, ये डोमेन्स बन गई, ठीक है। बाकी उसने खाने कितने लोगों के लिए बनाने वाला बात है। इसी तरह आपका जो है, जो 17 लोग हैं, हम कहेंगे 17 लोग, टोटल बंदे कितने हैं कंपनी में? 200। वाह जी वाह, तो बड़े मज़े हैं इनके। तो आप वो फिर हम कहेंगे कि यार इनकी डोमेन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने CI भी देखना है, CD भी देखना है, डेव भी देखना है, ऑप्स भी देखना है, डेव सेक ऑप्स भी देखना है, AI ऑप्स को भी करना है, सारी चीज़ें। अगर वो, आई एम अज्यूमिंग यू आर कवरिंग ऑल ऑफ दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट। So anything related to DevOps and subdomains of DevOps, DevSecOps, AI Ops, GitOps for that matter, ठीक है। तो PaaS platform, Kubernetes, उसको भी देख रहे हो आप, तो यानी it's lot of things. Now that's lot of domains to cover. And जितनी domain होगी, most of the time responsibility is kind of proportional to that. उतने काम आपने करने होंगे, ठीक है। Anyways, this leads to, if we thin them out, it leads to a lot of stress, delays and quality issues. And this is what we have to recognize. तो अब इसमें एक और रिलेटेड चीज़ है ना, जब आपसे कहते हैं ना, अभी बड़े भाई ने बोला कि शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट पे कौन बैठा है? बेचारे वो डेवलपर बैठे हैं। अब आपने सारा उठा के ना डेवलपर पे डाल दिया, तो डेवलपर कहेगा यार आपने उसका कॉग्निटिव लोड बढ़ा दिया। कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट ऑन सिक्योरिटी, अब वो बेचारा सिक्योरिटी भी करेगा। शिफ्ट लेफ्ट ऑन डेवऑप्स और पाइपलाइन, वो पाइपलाइन भी वो बनाएगा, ठीक है। नाउ दैट्स अ गुड आइडिया। शिफ्ट लेफ्ट ऑन क्वालिटी, वो यूनिट टेस्टिंग थे, वो भी वो सारा, यानी उसका तो आपने बिल्कुल तेल निकाल दिया ना। पैसे यार थोड़े ज़्यादा देना उनका उसका। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक इट ईजी फॉर देम। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। हमने डेव सेकऑप्स पे काम करना शुरू किया, ठीक है, 2 साल पहले। डेव जो सिक्योरिटी का एरिया है ना, उसमें बहुत सारे सब एरियाज़ हैं। एक है जो विच विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइस, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। मैं जो सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ उसको बनाने के लिए मैंने थर्ड पार्टी जितना भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसको कंपोज करने के लिए, उसको मैं सिक्योर करूँ। एक तो मेरा अपना कोड है ना, एक तो जो प्राया कोड यूज़ कर रहा हूँ लाइब्रेरीज में, वो सिक्योर है कि नहीं है। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है। तो आप बहुत सारे आपने देखना पड़ता है कि यार फलानी लाइब्रेरी जो यूज़ कर रहा हूँ उसका वर्जन ठीक है कि नहीं है, और सिक्योर वर्जन है कि नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। This is one of the areas. The other areas are dynamic security, DAS, SAST,
ऐसे क्या पता है, स्टैटिक सोर्स कोड एनालिसिस समथिंग लाइक दैट, डायनामिक सोर्स कोड एनालिसिस, वो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इससे कि यार आपकी जब एप्लीकेशन चल रही है वो सिक्योर है, उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो SCA को लेते हैं। अब SCA जो है ना, सो आई टच अपॉन फ्यू टॉपिक्स ओवर हियर विच आर ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन रिड्यूसिंग द कोऑर्डिनेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम DevOps की टीम है, हम एक DevSecOps का टूल लेके आ रहे हैं। अब हमने उसको इवेल्युएट करना है कि यार ये अच्छा टूल हो, तो उसमें जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यार, स्टेक होल्डर कौन है, कौन लोग इसको यूज़ करेंगे, उनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एडेप्शन आसान हो और प्रॉपर तरीके से हो। तो पहले तो है ना डेवलपर होगा उसका सबसे मेन स्टेक होल्डर, फिर और भी हैं, उस सिक्योरिटी का बंदा जो कि उसकी पॉलिसीज़ बनाएगा, फिर गवर्नेंस का बंदा जो उसको इन्फोर्स करा रहा होगा और रिपोर्ट्स बना रहा होगा सारा कुछ, ठीक है, और DevSecOps के लोग जो कि उस टूल को टूल चेन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और टूलिंग शूलिंग और डिप्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो 4 स्टेक होल्डर तो हमने इधर ही आइडेंटिफाई कर दिए। उसके अलावा ऑडिट वाले भी हैं बाहर से, लेकिन वो कवर हो जाएंगे बाद में, लेकिन ये मेन है। तो जो हमारा जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है ना, एक होता है ना यूज़र एक्सपीरियंस, इस केस में यूज़र कौन सा है, डेवलपर एक्सपीरियंस। तो डेवलपर एक्सपीरियंस का नाम तो आपने सुना होगा। मैं कहूँ जो पॉलिसी बना रहा है वो पॉलिसी वाले का एक्सपीरियंस क्या है, DevOps की टीम का एक्सपीरियंस क्या है उसको यूज़ करते वक्त, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैं जस्ट टू टच अपॉन दिस थिंग, आप बनाते हैं ना, डेवलपर हैं, आप कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपर कितने लोग डेवलपर हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा सही है, बेहतरीन। 10% अगला तनख्वाह का ना मेरे नाम पे भेजें आपने, मैं आपके लिए सारी कर रहा हूँ। लेट्स से यू आर डेवलपिंग सम UI मोबाइल ऐप, ठीक है। तो आप सबको पता है यार यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है, UX, ठीक है, इंट्यूटिव होना चाहिए। क्यों? मैं मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैं एक ना फाइटर प्लेन है उसका कॉकपिट डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक सिस्टम है ना, अब वो जो पायलट बैठा हुआ है, फाइटर पायलट, ही हैज़ टू मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, ठीक है। और अगर उसमें वो सब मेन्यू में चीज़ पड़ी हुई ना, तो उसका तो बड़ा गर्क हो जाएगा। तो so there is, so you lay out an awesome front end to him, like experience wise, ठीक है। Now what is your goal? Your goal is to reduce the cognitive load on that pilot so that he doesn't have to figure out too many things, he doesn't have to have too many things, सब मेन्यू थे, मेन्यू अपने जहन में उसको वो ठक बटन दबाया। तो your goal for your best user experience is reduce the cognitive load of the user, इतना intuitive हो चीज़, ठीक है। This is a way of thinking about it, right? Now on the same lines, your software is also used by one of the user is the support engineers, ठीक है। वो क्या टूल यूज़ करते हैं, मोस्ट लाइकली वो यूज़ करेंगे आपके लॉग्स वॉग्स देख रहे होंगे, सो यू हैव टू, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव UIs कोई देख रहे होंगे, उसकी जो कस्टमाइजेशंस होती हैं, कुछ सेटिंग्स वेटिंग, तो यू हैव टू नाउ थिंक अबाउट हाउ इंट्यूटिव यू मेक इट फॉर दैट सपोर्ट इंजीनियर सो दैट इट्स ईजी फॉर हिम with reduced cognitive load, it's easy for him to troubleshoot things, ठीक है। That's a user of your system, indirect user. Do you think about that as well? ठीक है। So good developers actually do think about that as well, यानी serviceability जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या observability built in करें उसमें ऐसे intuitive तरीके से कि यार करना भी आसान हो उसमें। Anyways, same thing, you know, अगर मैं कहूँ कि यार I am a user as well because I have to maintain the thing and enhance the thing. I do the design in a way that the design is easy to, you know, maintain and easy to enhance in future. Do enhancements in future. So this is just a thought about, you know, you produce something and it's consumed by the users, different types of users, and your goal is to make it to reduce the cognitive load of the user. So it's very intuitive and easy for him to use. Okay, so I hope that clarifies, like, you know, what does cognitive load mean over here. So let's move on. कोई question है तो बताएं। अच्छा,
Now, why is this so important? Because motivation is very, very important, right? And we are doing creative work over here. We are doing complex work. We are working with a lot of people in team fashions. We have to deal with, bad managers. I don't know, maybe good managers, I don't know. Or bad customers, whatever, right? So our motivation level needs to be very, very high, as much as possible. वो कहता है वो ये let's digress a little bit. बंदे से पूछता है कि यार the guy used to work, his name is Joe Justice. You can find his videos on YouTube. He is in Agile manufacturing. He used to work at Tesla. So somebody asked him, very similar organization to Emumba, but in more on manufacturing side. ठीक है? तो उसने कहा यार we were only 30 people and last year we grew to 100 people. So they have massive hiring. And now most likely in a couple of years we'll grow to 200 people. ठीक है? So how do we maintain culture? ठीक है? To keep people motivated, because good culture motivates people, right? For sure. तो उसने कहा कि उसने कहा I'll give you a common sense answer. The amount of excitement that you have. तो उसे टेस्ला की एग्जांपल दे रहा था. यार Tesla is so exciting. Even I watch videos almost daily basis about Tesla. I have invested in Tesla. We became jack of a bunch of things but master of none. ठीक है? Too many domains, responsibility बहुत बढ़ गई. ठीक है? तो and that kills your motivation. ठीक है? And you don't want that. So we have to structure our work that way. Any question before we move on? By the way, this would be a very important topic when we will talk about, I don't know if we will have time to talk about, we already run out of time, right? Next session में जब आएंगे ना, maybe after, maybe around Eid time frame, we'll talk about topologies of team topologies. How do we structure teams? What are different types of team? What are their interaction types? How can we optimize them in an agile fashion? Iterations उसके ऊपर करें. Anyways, let's move on. Dunbar number. ये जो है ना, this is more एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी. वो ये कहता है कि यार आपकी ज़िंदगी में 5 बंदे ऐसे होंगे जो आपके करीबी दोस्त होंगे, करीबी जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो हाईली ट्रस्टवर्दी होंगे. ठीक है? फिर 15 बंदे ऐसे होंगे जिनको आप ना अच्छा दोस्त कह सकते हैं. ठीक है? और 50 ऐसे होंगे जो आपके दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं. ठीक है? अच्छे तरीके से जानते हैं. और 150 ये हैं कि आप उनके नाम जानते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल रिलेशनशिप है लेकिन डीप नहीं है. 500 आपकी ना वो एक्वेंटेंसेस हैं. सोशल मीडिया आ गया तो यू माइट रिकग्नाइज देम बाय नेम. लिंक्डइन के कनेक्शन है, हर एक को नहीं जानते. हाँ यार वो फलाना बंदा था ये वो. ठीक है? तो यानी अब अवैस जो है ना, मैं कहूँगा यार अवैस मेरा लंगोटी है, वो इधर है. ठीक है? उठ के चला गया वो. अच्छा, यानी you guys maybe, I don't know, maybe some of you, I might be connected, might be over here, might be in another bigger box over here, 5000 में. ठीक है? तो the point is, हमने एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज की. ये बड़ा वो है. हम गए ये भी 3-4 महीने पहले की बात है. हमारी टीम के लोग थे, तो 6-7 बंदे हर टेबल पे बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपको ना, you will work as a team. Your goal is कि उन्होंने कुछ हमें इस तरह ब्लॉक्स दिए थे, उससे हमने शेप्स बनानी थी. वी हैड 6 टर्न्स. एक टर्न लेंगे, बंदा जाएगा, आधा मिनट के लिए वो शेप्स देखेगा, वापस आके ना उन ब्लॉक्स को रखेगा, उन शेप्स बनाए. वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स थी वो. और 6 टर्न्स हैं आपका. बेशक एक बंदा भेज दें, बेशक हर मुख्तलिफ बंदा भेजें, और हम और सारे बंदे जो है ना वो टीम वर्क करेंगे. एक बीच में जासूस होएगा, वो जो है ना सबोटाज करेगा आपको.
अब उन्होंने हर एक को ना वो दिया कि अपना आपका रोल क्या है। तो मैंने उठाया ना, तो अरबी में लिखा हुआ था, वो फॉन्ट भी ज़रा अजीब सी, तो मुझे जासूस तो उर्दू का भी लफ्ज़ है। मैंने कहा मैं जासूस हूँ। मैंने कहा ठीक है, इनको सबोटाज कर। मैंने आई डूइंग सम हैंकी पैंकी स्टफ के उनको पता भी नहीं लगे मैं जासूस हूँ। अच्छा, हर बंदा कह रहा है कि यार कोई एक जासूस है। अच्छा, वक्त के साथ ना वो बाकायदा हमें टेबल पे लग रहा है कि जो है ना लड़ाइयाँ होने वाली। ऐसा हुआ जो हमें 6 कार्ड दिए थे ना, उनमें से एक कार्ड इधर उधर हो गया। तो हमने कहा ये जासूस ने ना छुपा लिया। अब मैंने कहा जासूस तो मैं हूँ, ये दूसरा किधर से आ गया। वो यहाँ तक हुआ, वो सामने जो 2-3 बंदे बैठे थे उसने कहा चल तेरी तलाशी ने, तू जासूस है। वो यार अच्छे वो मैनेजर है, उनकी उसने तलाशी ले ली। अब ये गपशप में ये गेम चल रही। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा यार ये तो बहुत ही कोई आउट हो गई है ना बात। मैं कहा सर मैं देखूँ तो सही। मैंने वो जब देखा ना तो पता लगा वो जासूस पे एक कांटा था। वो फॉन्ट ऐसी थी, वो कांटा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। वो जो कोलैबोरेटिव का लफ्ज़ था ना, वो जो टीम वर्क का, वो अरबी में था। मुझे तो पता ही था, मैंने उसको तवज्जो ही नहीं दी थी। मैं तो जासूस देख के खुश हो गया था। तो एक्चुअली मैं जासूस नहीं था। फिर मुझे ख्याल है कि मे बी नन ऑफ अस आर जासूस। तो मैंने सारों से कहा यार मुझे अपने वो दिखाओ। दे डिडंट अलाउ इट बट आई डिड इट। कोई भी जासूस नहीं था। सो वो लेसन क्या था उसका, और बहुत सारे लेसन है ये। ट्रस्ट ना हो ना, मिसट्रस्ट will kill the team. So that's why they say smaller team sizes fosters trust, because you can only have high level of trust in smaller teams. ठीक है, तो वो जो team sizes का कहते हैं ना 4 to 8, 5 to 9 teams. Amazon वाले कहते हैं 2 pizza teams. ठीक है, उससे बढ़ने लगे तो you divide it up. But when you divide up the team, they have to coordinate. Now you have to do the right design and architecture to do that thing to reduce the coordination. So this is Dunbar number. There is actually science behind it. Okay? That's the reason. That's the reason you don't have team of 20 people. You have smaller teams. Okay? सब teams हो सकती हैं। तो उसी मॉडल के ऊपर ना वो कहता है कि you can have this organization where you have these 5 to 8 people teams over here, many of them. Then you can have another वो जिसमें let's say 15 लोगों की, यानी 3-4 लोगों की टीम जो है ना, 3-4 टीमें, सब टीमें मिलके एक कोई suite of teams बना लें, whatever you want to call it, tribe or whatever. और उससे ऊपर आप जाएं तो हो सकता है वो business unit हो। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, we have product teams जो कि 4 से लेके 8-9 लोगों की हैं। फिर उसमें सब टीम्स हो सकती हैं अगर वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। फिर 3-4 प्रोडक्ट ना एक प्रोडक्ट स्वीट में होते हैं। ठीक है, तो वो और फिर वो जो प्रोडक्ट स्वीट है वो एक बिजनेस यूनिट में है। तो बिजनेस यूनिट कैन बी 200-300 पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से, और देन यू हैव योर होल ऑर्गेनाइजेशन दैट वे। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कंसिडर वो अनियन की तरह की एक शेप बन गई। ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टॉप हेयर। ये एक स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। नाउ वी कैन अप्लाई डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट, जो आपने सवाल पूछा था ना, डिफरेंट सिचुएशन आप डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हो। कुछ एंटी पैटर्न्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। जैसे अभी ड्यूरिंग आवर डिस्कशन वी टॉक्ड अबाउट फुल स्टैक टीम्स। वाई? सो दैट दे डोंट हैव अ डिपेंडेंसी आउटसाइड टू गेट समथिंग डन। जिस तरह मैंने कहा मोबाइल का बंदा, इस तरह यूएक्स का बंदा। ठीक है, इसी तरह यानी मे बी यू कैन नॉट मेक इट ज़ीरो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हो सकता है आप कहें यार यूएक्स का बंदा यानी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बंदा अलहदा से है, वो करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, और लेकिन अगर उन्होंने करना भी है ना, जिस तरह मैंने कहा कि वीएम का था, तो इफ़ दे कैन मेक देयर फंक्शन एज अ सर्विस एंड यू कैन यूज़ द सर्विस इन अ ईजी वे, दैट वुड बी ऑसम। इफ़ यू कैन नॉट then they have to enable you, so they become either they are owners of something as a service, or they are enabling teams to enable you, and then they might have to provide you some tools, something to make your job easy, but then they will enable you, but they won't be part of your team, right? Okay, so co-location हो गई, decoupling, जो decoupling API first design, that's a way of decoupling. ठीक है, so decoupling will help you coordinate better because you don't have a lot of dependencies to begin with. But remember, within a team, you need cohesion. Yani everything that has to come together to make a whole has to be highly cohesive. If you have two teams, because they have a lot of dependencies, you can merge them together as well.
to reduce coordination, because जब वो अलग-अलग थी तो वो नहीं हो रहा था. अब now maybe you can merge them together. You carve out something that can be, because वो बहुत बड़ी होगी तो that's how depending on the situation you have to think creatively to how to structure the teams. Service orientation, API first design, उसमें फिर एक concept आता है team APIs का, which is basically APIs acts as a service will be exposed as API. तो team APIs का concept आता है, और फिर if you further extend it उसमें company APIs का भी concept आता है. वो जो API ecosystem है वो भी इसी से ही derive हो रहा है क्या, यानी if you further extend it, वो ये कहते हैं कि यार HR देखो ना, Amazon is number one in cloud, because in 2002 they said we will build everything as a service. In 2002 स्मार्ट बंदे थे 20 साल पहले. सो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है, मैं सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह ऐसा सर्विस लिखूंगा ना, एवरीथिंग. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे उन्होंने कंप्यूट को एज अ सर्विस बना दिया, स्टोरेज वाले ने स्टोरेज को एज अ सर्विस बना दिया. ठीक है, अब एक्सटेंड करो, आप कहें HR वाला भी HR की सर्विस बनाए, फाइनेंस वाला फाइनेंस की सर्विस बनाए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं. नाउ दैट वी कैन सिट डाउन एंड डिस्कस दैट. ठीक है, तो टीम APIs यू कैन थिंक HR की टीम की APIs हैं. ठीक है, नाउ अगर HR की टीम ने अपनी APIs बनानी है, इसका मतलब है they gotta think like a developer and a software guy, right? So there is, that's where enterprise architecture and that kind of support comes into picture. Anyways, this is monolithics versus microservices, we kind of touched upon it. Standardization. अब एक स्टैंडर्डाइजेशन करने का, यानी आप कहें कि यार ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना, हर बंदा अपने टूल्स यूज़ करे, लेकिन नहीं, यू वांट टू स्टैंडर्डाइज सो दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट विदाउट स्टाइफलिंग देम. आप स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो ताकि कोऑर्डिनेशन में आसानी हो, हैंड ऑफ्स में आसानी हो. ठीक है, ये डेवऑप्स की टीम से पूछे ना, जब इनको पाइपलाइनें बनानी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए, तो इनको तकलीफ होती है बिल्ड बनाने, इतने सारे टूल्स आ जाते हैं बीच में. तो वो जो है ना, स्टैंडर्डाइजेशन का एक और है कि इट विल हेल्प विद कोऑर्डिनेशन, इट विल रिड्यूस द कोऑर्डिनेशन रिस्क. Platform or self service, we talked about it. You make it something as a service, you maintain the platform, everybody else will use it. So you have removed the dependency. वही VM वाली example है. Coupling for domain and team cohesion. ये जो मैं कह रहा था कि if you have two teams, they are working just too much together. Now आप कहें कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी माइक्रो सर्विस बनाऊँ, merge them together so that उनकी silos break हो जाएं. Maybe figure out how you can creatively then enhance and optimize and maybe then do further teaming down the road. But for now, maybe you merge them together. It's not a bad idea. So you use your common sense, right? Use some principles. Basically you have to reduce coordination costs. Time zone cohesion. ठीक है, कि जो एक टाइम जोन में सारे लोगों को रखें, ज़्यादा टाइम जोन में ना रखें. अगर if you are a distributed team, now you are lucky, you are all in the same time zone, same city, and if you have to do coordination, I'm sure you say, hey, वो बॉस कहता होगा या आप यार काम में बड़ा, वो आपस में मिल के काम करना है, ऑफिस आ जाओ, रिमोट नहीं हो रहा. We do that, by the way. तो इसी तरह you can fill this thing out if you want to. So these are some patterns that you can apply. All of you can think about these things. So I left this side open. Maybe if we had time, we could go think about other things. चलें, और कोई सवाल before we end it? कोई फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? ये हाँ बिल्कुल, ये शेयर करेंगे. They have a lot of, by the way, these references. You can go through these references as well. They are good references. कुछ तरह औखे हैं पढ़ना, वो मुझे भी मेरे ऊपर से गुजर गया था, मैंने समरी पढ़ी, कंक्लूजन पढ़ा, लेकिन ये कि there is science behind all of this stuff. There is a guy, I don't remember which one it is. उसने तो उसकी वेबसाइट पे जाए ना, तो उसने तो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं, सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल हर चीज़ के लिए. आप वो जो मेरा बॉस कह रहा था ना, यार कोई फार्मूले निकालो ताकि हम HR के पास जाएं, वो उस बंदे के पास हर चीज़ का फार्मूला था. That was his specialization. He was like a modeling guy, statistics guy. Anyways, thank you very much, guys. Shukran.